अब तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे ना। यस सर। कॉल ओके सर। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का एक डीमर्जर हो रहा है. It will take another 6 to 8 months from the demerger. The market cap of Shankara is a very bad business. Market cap of Shankara is 1665 crores as on today. Stock P is 20 and इसके अंदर basically दो verticals हैं. One is their trading business and one is their business of steel manufacturing. The steel manufacturing business is actually not doing any great turnover or any great profits. The trading, which is the retail and the channel and the enterprise business, are mainly doing the sales. Now, steel manufacturing plant which they have has hardly got a turnover of 700 crores and is actually into losses. So, if once the demerger will be done, the trading business of Shankara will be demerged out, and the steel plant of Taurus Agile would be left in Shankara Building Products. शंकरा का नया कंपनी बनेगा जिसके अंदर ही बिजनेस निकल के चला जाएगा. So basically, all the market cap will go away from this company, and that will be divested to some another company. Taurus Value Agile has got a capacity of 2 lakh tons. Right? Now compare this with the capacity which is available with other companies. JTL Industries has got a capacity of 5.87 lakh tons. They're expanding by 4 lakh tons. APL is a very big plant, has got lots of capacity. If I look at the market cap of JTL today, the market cap of JTL is somewhere around 3,500 crores. So even if I divide this 3,500 crores by the factor of 6 lakh tons, what is the answer I get? 3,500 divided by 6. Around 500. 171. No. 3,500 market cap divided by 6 lakh tons capacity. Around 550 crores per lakh tons of capacity. Now, Right. Taurus Value Agile has got 2 lakh tons. So ideally on the assets, this Taurus Value Agile market cap should be 1,000 crores and the trading business should be 665 crores. But once the demerger will be done, we will be getting Taurus Value Agile for hardly 50 to 100 crores market cap. Everybody would be running after the Shankara trading business, and nobody will be looking at the leftover bad Marriott, which is the steel plant in Taurus Value Agile. If you get this business for 50 to 100 crores or even less, the only buyer which I see in my best opinion is APL Apollo. They will buy this steel plant of 50 crores, 100 crores, which is valued more than 500-600 crores, and they will amalgamate it with their capacity. Anyhow, you see it, this Taurus Value Agile 2 lakh tons plant on an asset basis is not going to be more than 50, 100, max 150 crores. So we'll be getting a business with 700 crores of sales, zero profitability as on trade, but this profitability once it goes to the APL umbrella will increase. So if you have patience for say not today, maybe after 6 months to 1 year, and another patience of 1 year to hold on, you can get a good compounding return in a bad Marriott company. This is just my observation. I was again this credit rating report flocked up. So I was trying to read that credit rating report. So landed onto this conclusion with what I just said. ठीक है? But sir, first Shankara going for the demerger and then APL Apollo going for the merger, right? Yes. See, Shankara will demerge the trading business and it will make Shankara products. Now, the Shankara building products will only have the steel plant of Taurus Value Agile. The balance, the rest, major business will be moved out. So everybody wants to buy good businesses. Nobody wants to buy bad businesses. So here, you will get an arbitrage of a 2-3x, very quick 2-3x in a matter of few weeks to months. Okay? Post demerger, right sir? Yes. When the demerger came. Post demerger, even if there is some selling going on or whatever the thing is, you know all that, how to calculate that, and Right. you see that post demerger you will get this company at a pathetically low price. Like in the So case just of NMDC, just for the similarity. हाँ.
But the thing is, still NMDC steel plant has not been sold to any big strategic buyer. This the strategic buyer will definitely be APL Apollo, because they already have ties up with that. 60% of their business is from APL Apollo, so they'll be going to buy that. Once they buy that, they'll be allotting you shares of APL Apollo. So they also will get some arbitrage. And buying these things at a cheap value will also give you some arbitrage. I don't say go and bet your house on it. Maybe 2% odd allocation in your portfolio is a good allocation to give to this opportunity. मैंने वो क्रेडिट रेटिंग शेयर करी है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ने के लायक क्या है बिजनेस कैन it's a very subdued business, but you will get a throwaway valuation. It's a kind of a cigar board approach what Benjamin Graham used to do. This is a cigar board approach which we are trying to do over here. So you find a cigar lying on the road and there is one puff left, so you can take benefit of that. ठीक है? Hello. And there Yes, will sir. be selling, Got it. or there is nothing, no much selling will be coming after demerger. एक चीज तो ये हो गई, दूसरा गणेशा इकोवर्स 70 रुपीज स्टॉक प्राइस 35 रुपीज में राइट इश्यू अनाउंस हो गया है. अभी डेट आई नहीं है, डेट इलेक्शंस के बाद आ जाएगी. So keep a track on this also, where you can probably apply more, and if you're lucky you get more. Ratio is also good, sir. 5:6. Yes, because it's a small cap company, so there is a lot minimum lot size. So you buy 4 lots, you can apply for 6,000 shares, and that is how it works. ठीक है. Only 2 things. सर टॉरस की एसेट तो 112 करोड़ दिखा रही. हाँ दिखा रही है ना, पर 100 करोड़ से नीचे मिलेगी आपको ये, बिकॉज प्रॉफिट नहीं है. 700 करोड़ की सेल है. So in this case, rather than looking for the good merit, look at the bad merit. सर उसका पैट भी 58 लाख का दिखा रहा है. हाँ 700 करोड़ सेल है सर. आप करंट अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाओ. करंट अपॉर्चुनिटी सेक्शन में मैंने एमएनए का आर्टिकल एनोटेटेड डाला हुआ है. एज फॉर लाइफ करंट अपॉर्चुनिटीज शंकरा. एक मिनट में लिंक देता हूँ आपको. नहीं आया, थोड़ा सा जूम अप करके देखना पड़ेगा. शंकरा का मैंने आर्टिकल डाला हुआ है इसमें. ओके तो सर जस्ट अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस. थैंक यू फॉर ऑल द अपडेट. बट जब शंकरा को डिमर्ज करेंगे तो ये टॉरस, विशाल और सेंचुरी वेल्स, रूफिंग और स्टील नेटवर्क्स होल्डिंग सारे इसमें रह जाएंगे. इसमें रह जाएंगे. मतलब रिजल्टेंट कंपनी हो जाएंगे. नहीं, नॉट द रिजल्टेंट कंपनी में ट्रेडिंग बिजनेस चला जाएगा. जो अभी कंपनी है शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, अच्छा इसी के अंदर वो सारे. ओके हाँ इसी में रह जाएगा. ओके. और शंकरा ने पहले ही एपीएल के सामने घुटने टेके ही हुए हैं कि हम अपना प्लांट बेच रहे हैं. सर 2017 में क्या हुआ था, शंकरा ने अपनी आधी फैसिलिटी हमको बेच दी थी. उसका भी मैंने केस स्टडी किया हुआ. मैं आपको लिंक देता हूँ एक सेकंड. इसके कॉल था एपीएल अपोलो, वेयर आई हैड फाउंड कैश फ्लो मैनेजमेंट. So this सर is the 160 सेशन हुआ था. सेक्शन 160 वो सेशन हुआ था. 160 शंकरा ने एपीएल अपोलो. मैंने लिंक डाल दिया सर. ये वो है टॉरस वैली होजाइल. 2017 में इनको अपनी आधा 2 लाख टन का प्लांट बेच चुका है. टॉरस वैली होजाइल क्या कहता था कि ये प्लांट इतना बेकार है कि हमारे से चलता ही नहीं है, और 1-2 क्वार्टर के अंदर वो प्लांट के अंदर एपीएल सुपर हाई मार्जिन बिजनेस बना के सुपर हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बेचने लगा. So this is just the APL case study. अब वो बैलेंस जो 2 लाख टन का प्लांट है, जिसकी वैल्यू आज के मार्केट कैप के हिसाब से एटलीस्ट 1 लाख टन का 500 करोड़ तो होना चाहिए, पर ये आपको 100 करोड़ के आसपास मिलेगा आफ्टर डीमर्जर. सर आज मेरे दिमाग में एक और भी बात आ रहा था. हाँ सर. जब हम फ्लोट कॉर्नर देखने की कोशिश करते हैं तो हम तो सीधा प्रमोटर पे देखते हैं कि उस प्रमोटर के पास इतनी होल्डिंग है. लेकिन मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया. वो आइडिया ये था कि जो स्टॉक्स, जो शेयर का वो हिस्सा, लेट मी कम टू माय पार्ट. जैसे अभी मैं ये पढ़ रहा था, HHL पढ़ रहा था, तो उसमें लिख रहा है कि द अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट ऑफ 1,14,227 रुपए, विच वाज डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2013-14.
तो 2013-14 में अगर मैं हरक्यूलिस का डिविडेंड देखता हूँ तो मुझे मिला डिविडेंड पे आउट है विच इज 13-14 मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट है वो शेयर्स हो गए जो जिसको कोई देख ही नहीं रहा है, मतलब किसी रिटेलर के पास हो या किसी के पास हो, लेकिन वो उसको शायद ट्रैक ही नहीं कर रहा है, तभी तो वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड करेक्ट प्रोटेक्शन फंड में गया। तो ये करेक्ट ये ये सारे शेयर्स भी फ्लोट को कॉर्नर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। दैट वाज माय यस अंडरस्टैंडिंग। यस करेक्ट सर वेरी गुड तो शैलेश विदाउट सर, विदाउट नोइंग ब्रिलियंट। और अननोइंग ये सारे शेयर भी ये लोग बाग जो फिजिकल में लेके भूल गए हैं, तो जितना भी अनक्लेम्ड डिविडेंड है नंबर ऑफ शेयर्स वो भी आपके फ्लोट कैलकुलेशन में आ सकते तो हैं। गुड ऑब्जर्वेशन सर, गुड ऑब्जर्वेशन। तो वही चीज, तो ये एक नया लर्निंग था मेरे लिए। और एच गुड एच सर। एच एल पे मैं भी लगा ही हुआ हूं सर, अभी सारा वैल्यूएशन स्टडीज का वीडियो देख रहा था। महंगा है सर। थोड़ा टाइम लग रहा है बट आई फील दैट आई एम लर्निंग बिट मोर फास्टर नाउ। तो गुड सर, गुड। एचएसएल वैल्यूएशन स्टिल एक्सपेंसिव। सॉरी सर, एचएसएल के वैल्यूएशन इज स्टिल एक्सपेंसिव। आवाज इको हो गया सर, सुन नहीं पाया। स्टिल एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, स्टिल इट इज ओके एक्सपेंसिव। ओके 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 सर। मार्केट अगर गिरता है, मोदी जी की 2 5 10 लीटर कम आती है, अगर कुछ रिएक्शन आता है, देन वी कैन गेट सम अच्छा, इसमें ऐसे सर एक और चीज की मैं इसका मार्केट साइज तो निकाल के बैठा हुआ हूँ, प्रॉफिट पूल निकालने में मुझे दिक्कत आ रही थी, और इसके कॉम्पिटिटर कौन है वो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, मैं उसको कहाँ से पकड़ूं? कोई नहीं है अभी फिलहाल। सॉरी सर। कोई भी नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम मैंने कुछ निकाले हैं, उनसे कंपेयर करके देखता हूँ फिर। राइट। यहाँ पर एक चीज होती है सर, केएसटी प्रीमियम। जब आपके पास इंडियन मार्केट में सेम कंट्री में कुछ कंपेरेबल ऑप्शन नहीं, देन मार्केट विल गिव यू केएसटी प्रीमियम। ये ओके। गॉट स्केयर्स अमाउंट ऑफ डेटा, तो किसके साथ कंपेयर करोगे? हम्म। मैं अपना होमवर्क करके फिर सर कल तक मैं आपको सबमिट करता हूँ एचएचएल पे, और फिर शंकरा को भी थोड़ा देखता हूँ सर। सर वन मोर इसका थिंग, डाला हुआ सर, आप कोई करंट अपॉर्चुनिटी सर्च करोगे आपको आर्टिकल मिल जाएगा, नहीं तो एमएनए थ्रेड में मिल जाएगा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, जब मैं एचएचएल पढ़ रहा था तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो उनका रूल्स है उसमें वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, stores and spares, packing material and semi-finished goods and finished goods are valued at lower cost and net realizable value. तो हाँ सही है। ये जनरल प्रैक्टिस है या फिर ये इसके केस में है? नहीं जनरल सॉरी, ओके 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 सर, ओके। मुझे लगा कि ये जानबूझ के लोअर रख रहे हैं तो इनका वैल्यू तो ज्यादा हो जाएगा आगे चल करके, तो दैट्स अ जनरल प्रैक्टिस। ये जनरल प्रैक्टिस है, हर कंपनी को ऐसा करना चाहिए, दिस इज द करेक्ट वे। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है, मैं हाँ अभी इस पे लगा। हाँ सही। सर मैं एक कंपनी में भी स्टडी कर रहा था, एक्सिकॉम टेली, वो ईवी चार्जर्स पे वर्क कर रही है एंड टेलीकॉम बैटरीज पे है। सो अगर कुछ आपको आइडिया हो तो मैं उसमें फर्दर करूं, अगर आपको ग्रीन सिग्नल है कि मतलब ठीक है कंपनी, अगर करो आपको जरूर आइडिया हो करो, तो। एकदम टैली। नहीं मैंने स्टडी नहीं करी सर, मैंने ट्रैक नहीं करा इसको। अब उसको जरूर ठीक कोई है, आपके सेम, पॉइंट्स मिलते हैं तो शेयर करो, आगे देखते हैं इसको। राइट, सेम मैं भी सर एक ट्राई करूँ एक पीडीएफ क्रिएट करने का फ्रॉम ए टू जेड, जितना भी उसमें डाटा अवेलेबल है, क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है, उसका जितना मैंने डाटा पढ़ा है काफी अच्छा अभी तक तो लगा है। सो आई एम ट्राइंग टू जितना डाटा कलेक्ट कर पाऊँ, प्लस जो वैल्यूएशन मैट्रिक आपने मेरे को समझाया था उस बेसिस पे भी मैं उस पर इसका थोड़ा वर्क कर रहा हूँ। आईपीओ कब आया सर एक्सिकॉम का? सर आई गेस 3-4 मंथ्स पहले ही आया था, 240 की रेंज में, 260 की रेंज में ये लिस्ट हुआ था, एंड एक दो क्वार्टर बाद अच्छे रिजल्ट्स आए हैं सर इनके, और काफी अच्छी ग्रोथ आई है इसके अंदर। ये मेनली क्या ईवी चार्जर्स पे है सर, ईवी चार्जर्स पे इनका ज्यादा फोकस है। क्या ये कंपनी अच्छी है सर? तो वही स्टडी कर रहा हूँ सर अभी तक, तो जो जिस बेसिस पे ईवी चार्जर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रेवेन्यू का बहुत छोटा सा पार्ट है अभी, मेन जो सर इनका बिजनेस आता है वो। मैंने अभी सिर्फ स्क्रीनर का प्लेस खोल कर, क्या ये कंपनी अच्छी है? क्या ये कंपनी अच्छी है सर? सर ग्रोइंग ग्रोथ तो लग रही है सर अच्छी है,
मार्जिन भी ठीक आ रहे हैं सर, क्योंकि ग्रोथ में के 330 साथ करोड़ मार्जिन का, भी आए हैं। 330 का सेल, 500 का सेल, 860 का सेल, 4 करोड़ पैट, 8 करोड़ पैट, 66 करोड़ पैट। स्टिल माय क्वेश्चन इज द सेम सर, क्या ये कंपनी अच्छी है? मैं आपको सर Charges कल will तक be इसका like आंसर just दे another commodity, no? So the chargers, are they using any special technology? Because the chargers are same as battery chargers. वो सब ठीक है सर, वो मैंने देखा नहीं है, बट लुकिंग एट द नंबर्स, क्या ये कंपनी अच्छी है? वैसे सिंपल सा सवाल है। नहीं सर, कंपनी में तो कुछ भी स्पेशल रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर ये कंपनी अच्छी है तो ये डिविडेंड आज तक क्यों नहीं दिया? ठीक है, सर। डिविडेंड राइट सर। डिविडेंड नहीं, 400 करोड़ रुपए का इसने वो लिया हुआ है। ये 400 करोड़ रुपए इसने रेस किया आईपीओ में, ये देख सकते हो आप। ये 400 यस सर। करोड़ रेस, ठीक है। अभी 400 करोड़ रेस किया, थोड़ा खर्चा वर्चा हो गया, सब कुछ हो गया। सो व्हाट इज द पार्ट ऑफ 24? 66 प्लस 400 प्लस 143 इज नॉट इक्वल टू 512। मान लो आईपीओ का एक्सपेंस हो गया, जो भी चीज होगी। सो व्हाट इज ही डन? ही हैज बेसिकली रिड्यूस हिज डेट बाय 60 odd crores. Next, what is he done? He has got inventory and cash and वो जो भी है इसके पास। Next, what has he done? Look at the cash flows, 10 crores. Look at the profits, 66 crores. Right? Now, in this 10 crores of cash flows, look at the direct tax paid. He's got a 5 crore rupees right back. ये बेसिक चीजें कितनी बार बता चुका हूँ। Look at the amount of tax he has shown percent on 96 crores. And then he gets to 66 crores. Actually, tax तो दिया ही नहीं। पुराने कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का राइट बैक लिया। कैश फ्लो ही 10 राइट करोड़ है तो टैक्स कहाँ से देगा? कैश फ्लो ही 10 करोड़ है, टैक्स कहाँ से देगा? ठीक है। वर्किंग कैपिटल इंटेंस, 93 करोड़ मेरा वर्किंग उसमें रिसीवर में चला गया, 70 करोड़ मेरा इधर चला गया। नेक्स्ट व्हाट हैज ही डन? हैज ही डन एनी गुड कैपेक्स? 24 करोड़ का कैपेक्स है। बाकी का मेजर क्या है? अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स। व्हाट आर सर, दीस वो अदर? इस फाइनेंशियल में सर वो कैपेक्स कर रहा है, जो 400 इन्होंने रेस किया, 200 बेसिकली डेट रिड्यूस करने में, और जो ये हैदराबाद में प्लांट जो है अपना सेटअप कर रहे हैं ईवी चार्जर्स के लिए। इनके ईवी चार्जर में एक्चुअली एक बेनिफिट ये है सर, ये होम से लेके जितने भी डीसी चार्जर जो ट्रांसपोर्ट बसेस में लगते हैं, वो सब में यूज होते हैं, वो सबके प्रोडक्ट बना रहे हैं। दो उसका सेल का पार्ट बहुत छोटा है, 200 प्लस ऑट का ही इनकी सेल है, और बाकी जो मेन इनका जो आता है वो टेलीकॉम के थ्रू ही आता है। टेलीकॉम में ये क्या करते हैं कि जितनी भी टेलीकॉम के टॉवर्स होते हैं उसकी लेड की बैटरी को रिप्लेस करके लिथियम बैटरी करते हैं। सर मेरा टोटल सेल्स कितना है? 631 प्लस 235, 8 तो 866 का सेल्स है। Now 235 divided by 866. What is the percentage of EV chargers to the total revenue? Please do. 27%. रफली आप कैसे कह रहे हो जब 27%, 30% EV चार्जर में है, आप कैसे कह रहे हो कि ये छोटा वर्टिकल है? सर ये अभी कंपेयर करोगे तो उसके मुकाबले कंपेयर, ये नहीं कह सकते कि ईवी बेस्ड कंपनी है ये अभी भी कंट्रोल मेन ये टावर्स का है। मैं तो वो ठीक है, अभी भी कंट्रोल क्रिटिकल पावर प्रोडक्ट्स का है, जो आगे जाके हो सकता है ईवी चार्जेस बढ़ जाए, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आज के तारीख में भी ईवी छोटा नहीं है इस कंपनी के बिजनेस में। 27% तो ईवी चार्जर पे काम कर रहा है, और अगर ये ईवी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने के लिए कैपेक्स कर रहा है, which is a good thing, that means आगे जाके इस पे ईवी पे फोकस है। Still the company is very small. Yeah, I am getting 200 crores पे 43 crores PBT, yeah, it is 34 crore PBT. कंपनी इज स्मॉल, तो ये सब चीजें डाइसी अभी चलती रहेंगी। राइट सर। सर And जो now can- हैदराबाद में जो प्लांट लगा रहे हैं सर, वो सिर्फ जस्ट ईवी चार्जर्स के लिए नहीं है। ये समझ क्या गया कर रहे हैं सर। कि सर ये सारे इक्विपमेंट से सब एक ही जगह बनेंगे, चाहे वो क्रिटिकल पावर्स के हो या ईवी चार्जर के। हाँ, तो ईवी वो चार्जर्स ऐसे में 14% पैट मार्जिन आ रहा है। पैड नहीं, पीबीटी है वो। सॉरी, 14% पीबीटी है वो। पीबीटी 14% आ रहा है। 14% PBT is a good margin, and 87% of the revenue. PV EV chargers is not a small base, not a small segment. So this annual report of 2024 will give you more clarity what is actually happening. राइट सर। तो अच्छा स्पॉट है आपका, इसको ट्रैक में रखो, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। कौन कॉल है आपके पास?
सर मैं आपको कॉन्कॉल मैंने detail इसकी में लिखा हुआ। कॉन्कॉल के मैंने हाईलाइट कर ली, प्रेजेंटेशन मैंने कर दी। एक डीआरएचपी और इसकी लास्ट एनुअल रिपोर्ट, डीआरएचपी मेरे को मेन करना है, फिर उसका नोट्स मैं एक बार बनाऊंगा सर शॉर्ट। ठीक है सर, बना के बताना, ट्राई करेंगे इसको पढ़ने के लिए। चलो सर, ओके, गुड राइट सर, नाइट। ओके गुड सर, नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट सर।